Praise the Lord. परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। It's been a long time since we all met, and my heart longs for the day we'll meet together to worship our Lord Jesus Christ. हमें मिले हुए काफी समय हो गया है और मेरा दिल उस दिन का इंतजार कर रहा है जिस दिन हम सब हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए एक साथ मिलेंगे। However, we ought to realize that this lockdown is for our own safety, and we must do everything possible to keep this lockdown rule and in order to break the chain of coronavirus. परंतु हमें ये जान लेना चाहिए कि ये लॉकडाउन हमारी सुरक्षा के लिए है और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हमें लॉकडाउन नियमों का पालन करना आवश्यक है। My heart is especially filled with gratitude to those who are serving during this crisis. मेरा दिल विशेष रूप से उन लोगों के प्रति आभार से भरा है जो इस संकट के दौरान सेवा कर रहे हैं। Thank you for all that you are doing to keep us safe, by treating all those who are sick or perhaps those who are infected, by delivering all the essential goods to the communities. In fact, even by providing and keeping the utilities running. धन्यवाद उन सब कामों के लिए जिसके कारण हम सुरक्षित हैं, उन सभी बीमार या संक्रमित लोग जिनकी आप सेवा करते हैं, समुदाय में सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी देने के लिए और सभी उपयोगिताओं को चालू रखने के लिए। Thank you. धन्यवाद। Over the past few weeks, I've been contemplating on the fact that an event like this has never happened before. In fact, in our own lifetime. पिछले कुछ हफ्तों में से इस तथ्य पर मैं विचार कर रहा हूँ कि किस तरह की घटना कभी नहीं हुई है, कम से कम हमारे जीवन के समय में। Weddings cancelled, schools and colleges are forced to shut down, no social gatherings are allowed. In fact, we are not allowed even to go out. शादियां रद्द कर दी गई हैं, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, किसी भी सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है और हम में से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। Life as we knew it has changed. It's not the same anymore. जीवन जैसा कि हम जानते थे अब वैसा नहीं रहा। Someone over a phone call suggested to me that it seems these are the end of times. हाल ही में किसी ने फोन पर मुझसे कहा कि ऐसा लगता है कि अंत की शुरुआत है। Indeed, Jesus is coming soon. वास्तव में यीशु जल्दी आ रहे हैं। I just want to remind you what our Lord and Savior Jesus Christ has reminded about events like these. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें इन जैसी घटनाओं के बारे में निर्देश दिया है। Let me read from Matthew chapter 24 verses 6 through till 8. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nations will rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. मत्ती 24 का 6 से 8। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। Don't lose hope. Take courage. आशा न खोएं, साहस रखें। Whenever we talk about the end of times, we often refer to the book of Revelations. जब भी हम समय के अंत के बारे में बात करते हैं, तो हम अक्सर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उल्लेख करते हैं। However, to make sense of this topic, the end of times, we must read the book of Daniel and the book of Revelation side by side. हालांकि इस विषय को समझने के लिए हमें दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है। And since we are talking about unusual times or the end of times, let me share with you a story or an incident that took place 2500 years ago from the life of an individual that God used to give his eschatological revelation. और जैसे कि हम असामान्य समय या अंत के समय के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे आपके साथ एक ऐसी घटना के बारे में बताना है जो लगभग 2500 साल पहले हुई थी।
एक ऐसा व्यक्ति के जीवन से जिसे परमेश्वर ने अंत के समय और न्याय के दिनों का वचन दिया था। It was a time when a specific group of people had gone through terrible crisis. यह एक ऐसा समय था जब एक विशिष्ट समुदाय बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था। A series of events had forced them to lose their way of life or their normal way of life. ऐसी घटनाएं जिनके कारण वे लोग अपने सामान्य जीवन को खो चुके थे। It was the year 586 BC when the kingdom of Judah was besieged and captured by the king Nebuchadnezzar. वो काल 586 ईसा पूर्व था जब बाबुल के राजा नबुकदनेस्सर ने यहूदा राज्य को घेर कर उस पर कब्जा कर लिया था। Soon the king ordered his official to bring and train some of the best, handsome, wise and intellectual people from Judah to train in literature and language of the Chaldeans so that they might serve the king. फिर राजा ने अपने अधिकारी को आदेश दिया कि वह यहूदा के कुछ श्रेष्ठ, सुंदर, बुद्धिमान और बौद्धिक नौजवानों को कसीदियों के साहित्यिक और भाषा में लायक प्रतिष्ठित करे ताकि वह उसकी सेवा कर सके। Among them were Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah. उनमें से दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजरिया थे। The king gave them Babylonian names राजा ने उन्हें बेबीलोनी नाम दिए। to make them fit the royal lifestyle. The king even ordered his official to feed the candidates royal food and wine. उन्हें शाही जीवन शैली के अनुकूल बनाने के लिए राजा ने अपने अधिकारी को आदेश दिया कि सभी उम्मीदवारों को राजा की शाही भोजन और शराब प्रदान किया जाए। You can bet the royal food that the king ate was delicious. आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजा को परोसा गया भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। However, Daniel decided that he and his fellow brothers were not going to defile or profane themselves by eating what the king had offered. Rather, they requested for a vegetarian diet. लेकिन दानियल ने फैसला किया कि वह और उसके भाई राजा को परोसे गए खाने से खुद को अपवित्र नहीं करेंगे, बल्कि साग पात और पानी का अनुरोध किया। They in fact challenged the king's official to check in 10 days to see if they were healthier on their vegetable diet compared to all the other candidates eating the royal kingly food. उन्होंने राजा के अधिकारी को 10 दिनों की चुनौती भी दी कि शाही भोजन खाने वाले अन्य उम्मीदवारों की तुलना में वे अपने साग पात के आहार पर ज्यादा स्वस्थ होंगे। Weird, right? अजीब है ना? Who would give up such delicious food? केवल एक मूर्ख ऐसे स्वादिष्ट भोजन को त्याग सकता है। You see, God's grace was upon the four men, for they desired for righteousness and the act of faithfulness. परंतु परमेश्वर की कृपा उन 4 युवकों पर थी क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता की इच्छा और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता थी। As a result of which, at the end of the 10 days, they were found to be healthier as compared to the other candidates eating the royal food. जिसके परिणाम स्वरूप 10 दिनों के अंत में सभी शाही भोजन खाने वाले अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ये 4 ज्यादा स्वस्थ पाए गए। God's favor was upon these individuals and they were chosen over the other candidates by the king to serve him. इन चारों नौजवानों पर परमेश्वर का अनुग्रह था, जिसके कारण उन्हें राजा द्वारा सेवा के लिए चुना गया। The king in fact found these young God-fearing men to be 10 times better than all the wise men in his country. बल्कि राजा ने परमेश्वर को भय रखने वाले युवकों को अपने देश के सभी बुद्धिमान पुरुषों की तुलना में 10 गुना ज्यादा बेहतर पाया। A year later, King Nebuchadnezzar had a dream. एक साल बाद राजा नबुकदनेस्सर को एक सपना आया। This dream troubled him very much. इस सपने से उसे बहुत परेशान किया था। Nebuchadnezzar knew that if he told his dream to the people, they would give a favorable interpretation in expectation of reward. नबुकदनेस्सर को पता था कि अगर उसने अपने लोगों को यह सपना बताया तो वह इनाम की उम्मीद में एक अनुकूल व्याख्या देंगे। So he demanded all the wise men and magicians to tell him his dream and then to interpret that dream for him or else be put to death.
इसलिए उन्होंने सभी बुद्धिमान पुरुषों और जादूगरों को आदेश दिया कि वह उसके सपना बताएं और फिर उसका व्याख्या करें, अन्यथा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। There was no one who could tell the king his dream. ऐसा कोई नहीं था जो राजा को उसका सपना बता सके। The king's magicians and sorcerers were perplexed, and they replied, "The thing that the king asks is difficult, and no one can show it to the king except gods, whose dwelling is not in the flesh." राजा के जादूगर हैरान थे और उन्होंने उत्तर दिया, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। It is impossible. ये असंभव है। No one except God can do it. परमेश्वर को छोड़ कोई नहीं कर सकता। When Daniel knew of this development, he requested an audience with the king. जब दानियल को इस विषय का पता चला तो उसने राजा के सामने प्रस्तुत होने का अनुरोध किया। Meanwhile, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, they prayed to the true, powerful, all-knowing, living God to make the impossible possible. इस बीच उन चारों ने, दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या ने सच्चे, शक्तिशाली और जीवित परमेश्वर से असंभव को संभव करने की प्रार्थना करी। They went down on their knees and prayed for an intervention from God. वे अपने घुटनों तले बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। You know, something miraculous happened. एक चमत्कार हुआ। God showed Nebuchadnezzar's dream to Daniel and also gave that interpretation to Daniel. परमेश्वर ने दानियल को नबूकदनेस्सर राजा का सपना दिखाया और उसकी व्याख्या दी। When Daniel appeared before the king, and the first thing he did was he praised God. जब दानियल राजा के सामने आया तो उसने पहले परमेश्वर की स्तुति की। And then he told the king all that he had showed Daniel. और उसके बाद उसने जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिखाया था नबूकदनेस्सर राजा को बताया। Hear this very carefully. On hearing Daniel, Nebuchadnezzar made a confession, saying, "Truly your God is God of gods and Lord of kings and a revealer of mysteries, for you have been able to reveal my mystery." दानियल को सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने स्वीकार किया, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। There are many such faithful testimonies from the lives of Daniel and his friends. दानियल और उसके भाइयों के जीवन से कई ऐसी गवाहियां हैं। Be it the time where Hananiah, Mishael, and Azariah were thrown in the fiery furnace for refusing to bow down to the golden image that King Nebuchadnezzar had set up. चाहे उस समय की बात हो जब हनन्या, मिशाएल और अजर्या को राजा नबूकदनेस्सर ने धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने राजा द्वारा स्थापित किए सोने की मूर्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। All the time when Daniel was thrown in the lion's den for praying to God, as it was a direct act against King Darius. या फिर वह समय जब दानियल को शेरों की गुफा में फेंक दिया गया था, जब उसने राजा दारा के फैसले के खिलाफ परमेश्वर से प्रार्थना की थी। Daniel and his friends showed a life of great valor, faithfulness, submission, commitment, and obedience. दानियल और उसके मित्रों ने महान वीरता, विश्वास, समर्पण, प्रतिबद्धता और आज्ञाकारिता के जीवन का प्रदर्शन किया। Truly, what a great and powerful testimony. सच में ये महान और शक्तिशाली गवाही है। However, this question still remains. परंतु यह सवाल जरूर उठता है, how did these individuals hold on to their faith in such dangerous and discouraging times? ऐसे खतरनाक और हतोत्साहित समय में इन व्यक्तियों ने अपने विश्वास को कैसे धारण किया? From where did they muster the courage to live an uncompromising and a faithful life? कहां से उन्होंने एक सीधा और वफादार जीवन जीने की हिम्मत जुटाई? This morning I want to share with you some factors that established a powerful testimony for these individuals. आज सुबह मैं आपके सामने उन कारकों को रखना चाहूंगा
जिनके द्वारा इन विश्वास के योद्धाओं ने एक शक्तिशाली गवाही को स्थापित किया। Living in a time of total uncertainty, and that too in a context that defiled their spiritual existence, these men were effective because एक ऐसे समय में जब कुल अनिश्चितता थी और वह भी उस संदर्भ में जिसमें उनकी आध्यात्मिक पहचान को खतरा था, ये लोग एक प्रभावशाली जीवन इसलिए जी पाए क्योंकि they knew their God. वे अपने परमेश्वर को जानते थे। They were committed to their God. वे अपने परमेश्वर के प्रतिबद्ध थे। They were men of courage. वह साहसी व्यक्ति थे। They were men of character. वे महान चरित्र के व्यक्ति थे। They were men of prayer. वे प्रार्थना के योद्धा थे। They kept their testimony. उन्होंने एक पवित्र गवाही रखी। They knew their God. वे अपने परमेश्वर को जानते थे। These individuals knew the God of their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. वे अपने पूर्वजों अब्राहम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर को जानते थे। They knew that the God was the same God who brought them out of the land of Egypt. वे उस परमेश्वर को जानते थे जो उन्हें मिस्र की भूमि से बाहर लाया था। They knew the 10 commandments that God gave Moses. वे उन 10 आज्ञाओं को जानते थे जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। They knew of all the laws and stipulations that God gave them when they possessed the land. वे उन कानूनों और व्यवस्था को जानते थे जो परमेश्वर ने उनके देश के लिए स्थापित किए थे। They also knew that God had punished them for their sins and rebellion by sending them to exile in Babylon. वे जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें उनके पापों की सजा दी थी, बाबुल में गुलाम बनाकर। They also knew that the word of God describes him as a merciful and forgiving God, and that their current plight will change when they repent and follow God. वे परमेश्वर के वचन को जानते थे और यह कि एक दयालु और क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और अगर वे पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो उनकी वर्तमान दुर्दशा बदल जाएगी। They knew their God is a holy and righteous God, a demand that is upon themselves. वे जानते थे कि उनका परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, एक मांग जो उनके जीवन पर भी है। They knew their God. वे अपने परमेश्वर को जानते थे। They were committed to their God. वे अपने परमेश्वर के लिए प्रतिबद्ध थे। They were committed for they knew their God and His holy word. वे अपने परमेश्वर के लिए प्रतिबद्ध थे क्योंकि वे उसे और उसके पवित्र वचन को जानते थे। They knew that their present plight was a result of God's judgment because of Judah's sin and rebellion. वे जानते थे कि उनकी वर्तमान दुर्दशा परमेश्वर के खिलाफ किए गए पाप पर और विद्रोह की कारण थी। They chose to be obedient to God because they revered Him. उन्होंने परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी होना चुना क्योंकि वे उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। They were men of faith who relied on God, and that was the reason behind their act of valor and uncompromising spirit as they stood against all odds to live a godly life. उनकी वीरता और अदम्य भावना के पीछे यही कारण था, वे परमेश्वर पर भरोसा करते थे और उन्होंने परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य जीवन बिताया। They were committed to God, and they took a stand by not defiling themselves by eating the king's royal food. वे परमेश्वर के लिए प्रतिबद्ध थे, इसलिए राजा के शाही भोजन को खाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे खाकर वे खुद को अशुद्ध नहीं करना चाहते थे। They were committed to honor God by following His every word, no matter what the cost. वे परमेश्वर का और हर वचन का पालन करते हुए उनका सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध थे, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। They were committed to their God because they loved their God. वे प्रतिबद्ध थे क्योंकि वे अपने परमेश्वर से प्यार करते थे। They were men of courage. वे साहसी व्यक्ति थे। Living in a heathen land, and that too in a system where Daniel and his friends were forcefully indoctrinated and inculcated to the popular culture, these men showed great courage as they stood against the prescribed norms. अन्य जातियों के देश में रहते हुए, और वह भी एक ऐसी व्यवस्था में जहां दानियल और उसके दोस्तों को जबरदस्ती अन्य जातियों की संस्कृति सिखाई गई ताकि वे उसे अपनाएं। दानियल और उसके दोस्तों ने बहुत साहस दिखाया जब वे उन निर्धारित विधियों के खिलाफ खड़े रहे। Be it the time where they were thrown in the fiery furnace
for not bowing down to the golden image. चाहे उस समय की बात हो जब उन्हें धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने राजा द्वारा स्थापित किए सोने की मूर्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया था. Or the time when Daniel was thrown in the lion's den for praying to God. या फिर वह समय जब दानियल को शेरों की गुफा में फेंक दिया था जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी. These men showed great courage. दानियल और उसके दोस्तों ने बहुत साहस दिखाया. Even though they had everything against them, they mustered the courage to stand for their spiritual identity, all because they knew their God, they loved Him, and they were committed to following Him. भले सब कुछ उनके खिलाफ था, फिर भी उन्हें अपनी आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए साहस जुटाया, क्योंकि वे परमेश्वर को जानते थे, उससे प्यार करते थे और उसे प्रतिबद्ध थे. They were men of great character. वे महान चरित्र के व्यक्ति थे. Daniel and his friends were men of impeccable character. दानियल और उसके दोस्त निष्कलंक चरित्र के व्यक्ति थे. We find in Daniel chapter 6 verse 4 that the high officials and satraps sought to find a ground for complaint against Daniel with regard to his kingdom, but they could find no ground for complaint or any fault because he was faithful and no error or fault was found in him. हम दानियल 6:4 में पाते हैं कि अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकले और ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके. Even though Daniel and his friends had many opportunities to live a comfortable life by adhering to the popular culture, they chose not to compromise their identity and they lived a life that honored God. भले ही उनके पास कई अवसर थे लोकप्रिय संस्कृति के अनुसार जीकर एक आरामदायक जीवन को बिताएं, परंतु उन्होंने अपनी पहचान के साथ कभी समझौता नहीं किया और एक ऐसा जीवन जिया जिससे परमेश्वर को महिमा मिले. It wasn't easy as the whole world came against them. ये आसान नहीं था क्योंकि पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी. However, they fought against every temptation to sin and that resulted in their character formation. परंतु वे पाप के हर प्रलोभन के खिलाफ लड़े और इसके परिणाम स्वरूप उनका चरित्र परिपक्व हुआ. In fact, the power of Daniel's character enabled him to influence the people and the culture that he lived in. दानियल के चरित्र में वो शक्ति थी जो वह अपने समय के लोगों को और संस्कृति को प्रभावित करने में सक्षम रहा. They were men of great character. वे महान चरित्र के पुरुष थे. They were men of prayer. वे प्रार्थना के योद्धा थे. Daniel was a man of prayer. दानियल एक प्रार्थना का योद्धा था. Whatever circumstances that they may find themselves in, Daniel always sought to pray and come before the Lord. जो भी परिस्थितियां हो, वह हमेशा प्रभु से प्रार्थना करता था. Be it the time when Nebuchadnezzar ordered all the magicians in the kingdom be killed for not being able to tell him his dream. चाहे वह समय हो जब नबूकदनेस्सर राजा ने आदेश दिया था कि उसके राज्य के सभी जादूगर उसका सपना ना बताने के कारण मारे जाएं. Or the time when Daniel was thrown in the lion's den for praying. या वह समय जब डैनियल को प्रार्थना के लिए शेर की मान में फेंक दिया गया था. He showed the world that prayer is the tool through which impossible situations are made possible. उसने सारे संसार को दिखाया कि प्रार्थना ही एक उपकरण है जिससे असंभव परिस्थितियां संभव हो जाती हैं. Through his life, Daniel showed that battles are won when one relies on God through prayer. दानियल ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि जीवन के युद्ध को प्रार्थना के द्वारा जीता जाता है. It is the weapon that has the power to move mountains. यह वह हथियार है जो पहाड़ों को हिलाने की ताकत रखता है. Daniel, moreover, was consistent in life because he was consistent in prayer. इसके अलावा दानियल जीवन में भी प्रभावशाली था क्योंकि वह प्रार्थना में समर्पित था. He did not dwindle in faith, rather he found his strength in the Lord through prayer. उसने कभी अविश्वास नहीं किया,
बल्कि प्रार्थना के माध्यम से हमेशा परमेश्वर में शक्ति और सामर्थ को पाया। He confessed that he could not do anything on his own, rather could do all things through God on whom he trusted. उसने कबूल किया कि वह अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के जरिए वह सब कुछ कर सकता है जिस पर वह भरोसा करता है। He was a man of fervent prayer. वह उत्कट प्रार्थना का व्यक्ति था। They had a powerful testimony. उन्होंने एक पवित्र गवाही रखी। Daniel and his friends had many faith stories. दानियल और उसके दोस्तों की कई विश्वास की कहानियां थी। Their faithful lives had more power encounters, and that gave them the opportunity to influence the community and the culture. उनके विश्वास के जीवन में कई बार परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव हुआ, जिसके कारण उन्हें अपने समुदाय और संस्कृति को प्रभावित किया। In Daniel chapter 4 verses 1 to 3, we see King Nebuchadnezzar make an announcement to all the peoples, nations and languages that dwell in all the earth. Peace be multiplied to you. It has seemed good to me to show the signs and wonders that Most High God has done for me. How great are His signs and how mighty His wonders. His kingdom is an everlasting kingdom and His dominion endures from generation to generation. दानियल 4 का 1 से 3 में राजा नबूकदनेस्सर ने देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारे पृथ्वी पर रहते हैं उन सबको यह वचन दिया, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Likewise, in chapter 6 verses 25 through to 27, we hear King Darius make an announcement to all the people and nations and languages that dwell in all the earth. Peace be multiplied to you. I make a decree that in all my royal dominion people are to tremble and fear before the God of Daniel, for He is the living God, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed, and His dominion shall be to the end. He delivers and rescues. He works signs and wonders in heaven and on earth. He who has saved Daniel from the power of the lions. इस तरह हम अध्याय 6 के 25 से 27 में देखते हैं कि राजा दारा ने सारी पृथ्वी में रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। These testimonies are not of simple people. Rather, they are the testimonies of emperors of the most powerful kingdom of that time. ये गवाहियां साधारण लोगों की नहीं है, बल्कि उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के सम्राटों के हैं। This was possible because Daniel and his friends knew their God, and they were committed to honor and serve Him in an evil generation. यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि दानियल और उसके दोस्त परमेश्वर को जानते थे और एक बुरी पीढ़ी में उसकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। They lived a life founded on prayer, and that gave them the courage to go through the hardest times. उन्होंने प्रार्थना पर आधारित जीवन जिया, जिससे उन्हें सबसे कठिन समय से गुजरने का साहस मिला। Moreover, Daniel's impeccable character and consistent life gave him many powerful testimonies, and that had the ability to influence the people and the culture he lived in. इसके अलावा दानियल के निष्कलंक चरित्र और सुसंगत जीवन ने उसे कोई शक्तिशाली प्रमाण दिए जो लोगों और संस्कृति को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी।
Church, कलीसिया, do you know your God? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? Are you committed to your God? क्या आप अपने परमेश्वर के लिए प्रतिबद्ध हैं? Do you have courage and confidence in your God? क्या आपके पास अपने परमेश्वर में साहस और विश्वास है? What's your character like? आपका चरित्र कैसा है? How's your prayer life? आपकी प्रार्थना का जीवन कैसा है? What is your testimony? आपकी गवाही क्या है? Daniel shows us how we too can live a godly life in an ungodly world. दानियल हमें दिखाता है कि हम एक अधर्मी दुनिया में परमेश्वर को आदर देने वाला जीवन कैसे जी सकते हैं। He proved that we can live pure and holy lives in a corrupt culture. उन्होंने साबित किया कि हम एक भ्रष्ट संस्कृति में शुद्ध और पवित्र जीवन जी सकते हैं। As we heard a couple of weeks ago, God is indeed looking for people who would stand in the gap and intercede for people. जैसे कि हम कुछ हफ्ते पहले हमने सुना था, परमेश्वर वास्तव में ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो बाड़े को सुधारे और जो लोगों के लिए प्रार्थना करे। Just as God chose Abraham, He has chosen us, so that we will direct our children and our household after us to keep the way of the Lord by doing what is right and just. परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को चुना, वैसे हमें भी चुना है, ताकि हम अपने पुत्रों को और परिवार को जो हमारे पीछे रह जाएंगे आज्ञा देंगे कि हम यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। Like Daniel and his friends, we too need to realize that we are in exile and that the world we live in is not our home. दानियल और उसके दोस्तों की तरह हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि हम परदेसी हैं और जिस दुनिया में हम रहते हैं वह हमारा घर नहीं है। We too need to surrender our lives to God and deliberately choose to serve Him alone. हमें भी परमेश्वर के सामने अपने जीवन को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है और केवल उसी की सेवा करने का समर्पण करें। Mark these prophetical words. Jesus Christ is coming soon, and we will soon see a series of events that mark His return. इस भविष्यवाणी पर ध्यान करें। मसीह यीशु जल्दी आने वाले हैं। हमें जल्द ही उन सब घटनाओं को देखेंगे जो उनके आगमन को दर्शाती हैं। Just as God used Daniel, He wants to use us too. जिस तरह परमेश्वर ने दानियल को इस्तेमाल किया, ऐसे ही वह हमें इस्तेमाल करना चाहता है। We too will be witnesses before the Nebuchadnezzars and Dariuses of our time, and they too will confess that Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. हम भी अपने समय के नबूकदनेस्सर और दाराओं की गवाहियां सुनेंगे कि यीशु ही राजाओं का राजा है और परमेश्वर का परमेश्वर है। Let this lockdown period be a time that we deliberately choose to grow closer to God. आइए इस लॉकडाउन अवधि को एक ऐसा समय बनाएं जिसमें हम जानबूझकर परमेश्वर के करीब होने का समर्पण करें। This lockdown is not a coincidence. Rather, it is a God-ordained season in our life so that we can grow a heart for God. We can be His witnesses and that we can also be a Daniel in our time. ये लॉकडाउन अवधि कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन में दिया गया एक अवसर है ताकि हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए तैयार हो सकें और उसके गवाह बन सकें कि हम भी अपने समय के दानियल बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें एक अच्छा मौका दिया कि आपकी पवित्र कलीसिया एक साथ फिर से बेशक ऑनलाइन माध्यम के द्वारा मिलकर आपकी आराधना, स्तुति और आपके वचन को हम सुनने पाए। हम जानते हैं पिता, आपने अपने कलीसिया को आपके पवित्र वचन दिया है और इस लॉकडाउन अवधि के दौरान पिता आपकी इच्छा है कि आपकी कलीसिया आपके हृदय को जानने पाए, आपको जानने पाए, आपके नजदीकता में आने पाए, आपके प्रति समर्पित होने पाए। पिता एक ऐसे साहस और एक ऐसे चरित्र में बनने पाए
कि प्रार्थना के योद्धा बनकर एक ऐसी गवाही को स्थापित करें कि हम अपने युग में आपके नाम का प्रचार करने पाए, अपने जीवन से पिता एक ऐसे जीवन को बिताएं ताकि लोग, अपने जितने भी लोग हैं वो सब आपके सामर्थ को देखने पाए पिता, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने पाए, यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने पाए, यीशु मसीह के उस पापों की क्षमा का अनुभव उनके जीवन में आने पाए पिता। कलीसिया के एक एक जन को आप अपने सामर्थ से भरे, अपने प्रेम से भरे, ताकि इस लॉकडाउन के अंत में हम जब नए ऋतु में आते हैं, हम पिता एक नए पहचान में, एक नए अभिषेक में, एक नए मकसद के साथ आगे बढ़कर पिता अपने जीवन के द्वारा इस युग में दानियल जैसा एक प्रभावशाली जीवन को बिताने पाए। बहुतों को अपने जीवन से यीशु मसीह के प्रेम के बारे में हम बताने पाए पिता। हमें आप अंतिम दिनों के लिए तैयार करने पाए, ताकि जब आपका आगमन हो पिता, हम स्वर्ग के लिए तैयार हो जाने पाए। धन्यवाद करते हैं आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा। खासकर प्रार्थना करते हैं आप उन सभी लोगों के साथ रहें जो इस लॉकडाउन के दौरान सेवा करते हैं, जो लोग इस लॉकडाउन के दौरान पिता जो पीड़ित हैं, जो दुख तकलीफ में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो जरूरत में है पिता, उन सबको आप अपने सामर्थ के द्वारा उनके जीवन में कार्य करें। जिनके पास कमी है उनको खाने पीने की और सुरक्षा की आप प्रदान करने पाए। खासकर पिता जो लोग बीमार हैं आप उनको चंगा करने पाए। पूरे विश्व भर में पिता आपका सामर्थ उतरने पाए, ताकि हर एक घुटना टेके और हर एक जीव अंगीकार करे यीशु मसीह ही प्रभु है। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ लगातार होते रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।